So once again, I think all have joined now. Yeah. So once again, everyone has joined. This is your course instructor, Khushwant Fatnani. Let us start off with the session. Today, for all of you, that is class 11 students, we are going to do, we are going to continue units and measurements, right? And before we start off with anything, like always, we will start with prayer and meditation. So everyone will join their hands, bring smile on their face, close their eyes. Let us begin. 3 counts and one by one, 3 deep breaths on each count. Count 1. Deep breath in and breathe out. Count 2. Once again. Breathe in slowly and breathe out. One final time. Breathe in. Slowly breathe out. अब हम सब प्रार्थना करेंगे. डियर गॉड, आप सब लोग मेरे साथ रिपीट करते जाएंगे अपने अपने घरों पर. डियर गॉड, वी आर योर चिल्ड्रन. We pray you to protect us and to guide us. Dear God, we thank you for good health, wealth, and wisdom. Your favor is upon me, my health, wealth, education, career, finances, and my family. I thank you in advance that I have cleared my 11th and 12th examinations, JEE 2022 and NEET 2022 in flying colors. I have got admission into the best college of my dreams, and I am grateful in advance. Dear God, I thank you for assisting me and guiding me in advance via my friends, family, and relatives. Thank you, thank you, thank you. ईश्वर का धन्यवाद करने के बाद let us start the class very slowly and steadily. All of us may open our eyes. All right class, let's continue. So हम जो chapter पढ़ रहे हैं, name is units and measurements. Let us restart. All right. So here we go. Name of the chapter अपनी copies में आप लोग already शुरू कर चुके हो. Write the heading units and measurements. Right. So before we start, I'll have one of you helping us with the revision. So let us take Enya this time, or let us take Tejas first. Yeah. Then next one to speak will be Enya, right? Yes, Tejas. So Tejas, quickly help us revise, every one of us, topic by topic, what we had read, and
what could you understand out of it, right? Quick summary. Yes, Tejas, go ahead. So first we learned that in any question, every question we always have to maintain unit consistency while solving numericals. Yes. So And one thing which we learned last class was unit consistency. यूनिट कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में डेटा किसी एक यूनिट में दिया है, राइट, तो आप अपनी हड़बड़ी में उस डेटा को किसी भी वैल्यू में डालकर कुछ भी आंसर नहीं निकालेंगे, रादर दो बार चेक करेंगे. जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल. सपोज आपके पास ये ग्राफ दिया है, ठीक है. ग्राफ में दिस इज एक्स while this is y. X is given in meters, y is given in centimeters, right? Suppose आपको यहाँ से कुछ डेटा लेना है किसी एक पॉइंट का, जहां पर यहाँ दिया है 2,5 whereas यहाँ दिया है 7,6. तो मुझे पता है कि ये पहला वाला जो नंबर है ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ये जो अगला वाला नंबर है ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है. तो मेरे को अगर पॉइंट B के बारे में कहा जाए, तो मैं कहूंगा पॉइंट बी implies 7 meters and 6 centimeters, right? 7 meters and 6 centimeters, because देखो सभी लोग, on the y axis you have centimeter whereas on the x axis you have meters, है ना? तो हमें इस तरह से बड़ी ही सतर्कता के साथ डेटा को इंटरप्रीट करना है, इसे कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन. अगर आप लास्ट ईयर्स के जेईई, नीट या फिर बोर्ड एग्जाम्स का एक एनालिसिस देखोगे ना, तो यू विल फाइंड दैट अधिकतर बच्चे गलतियां सिर्फ फॉर्मूलाज या कैलकुलेशन में नहीं करते हैं. बहुत सारे बच्चे डेटा को इंटरप्रीट ही सही ढंग से नहीं कर पाते. तो हमें इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है. जो लिखा है क्वेश्चन में उसको अच्छे से समझना है, राइट? उसका पहला स्टेप होता है यूनिट को अच्छे से समझना, राइट? हाँ तेजस, प्रोसीड. then we studied the relationship between unit and the value, The numerical, like right? numerical value. Yes, Absolutely correct. And the relation is that value is inversely proportional to the unit. absolutely correct. कि हमने समझा लास्ट क्लास में कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये यूनिट से कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इनके बीच में ग्राफ कैसा बनना चाहिए तेजस? कैसा बनना चाहिए मींस? ग्राफ का नेचर हमने एक पढ़ा था ना, हाइपरबोलिक, हाइपरबोला. यस, जो ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं हाइपरबोला, जिसकी इक्वेशन होती है n is equal to some constant upon u. It is called a hyperbola. ठीक है, ओके. ये हमने पढ़ा था कि इस ग्राफ, इस तरह के इनवर्स रिलेशनशिप ग्राफ को हम कहते हैं हाइपरबोला, जिसमें x और y एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. कहने का मतलब क्या होता है तेजस, बताओ? अगर x वैल्यू बढ़ रही है तो y को क्या होगा? डिक्रीज. डिक्रीज. उसी तरह से अगर x is decreasing then what will happen to y? It will increase. Increase. Absolutely correct. Yes. Next point बोलो बच्चा. So n and u share a hyperbolic relation, and then we studied some fundamental quantities and base units. So there are 7 types of base units. हमने पढ़े कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स के बारे में, ठीक है. फिर आपने बताया कि हमारे पास 7 तरह के बेस यूनिट्स हैं. कौन कौन से? यस तेजस. Length, mass, लेंथ, time, मास, टाइम, current. करंट. करंट को कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन? ए. Sorry. करंट को हम डायमेंशन के फॉर्म में डिनोट करते हैं यूजिंग ए, राइट? Okay. हाँ. Yes, yes, go ahead. हाँ बच्चा. Then thermodynamic temperature, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है. luminous intensity, Luminous intensity, correct. Luminous and amount. and amount. So I'll write the other three in terms of, or maybe all of them in terms of the values you said. Yes, एक बार repeat करो बच्चा. Length, अगला Length, mass, mass, yes, time, time,
current, electric current, then absolutely correct. thermodynamic temperature, Thermodynamic temperature, luminous intensity, ठीक है, आगे बोलो. and amount. And the amount. Yes. Then we studied two supplementary units, radian and steradian, and the differences between them. आपने पढ़ा supplementary units के बारे में, which are radians and steradian. Absolutely correct बच्चा, बिल्कुल सही. आगे बोलो. उसके बाद we studied dimension, उसकी definition, and then few examples, and then that's it. You gave homework. Okay. Dimension देखा. Dimension के बारे में बताओ तेजस, क्या होते हैं dimensions? क्या? Dimension means like if we express any quantity in terms of mass, length, and time, so the powers or indices or exponents of that mass, length, and time is known as dimension. Absolutely correct. देखो, इसमें हम ना आज दो और क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं. सभी लोग लिखो, सिर्फ मास, लेंथ और टाइम नहीं, ये जितनी भी हमने क्वांटिटीज पढ़ी है ना, ऑल द बेस क्वांटिटीज, इनके टर्म्स में हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? डायमेंशन. ऑल्दो मास, लेंथ और टाइम काफी कॉमन वेरिएबल्स हैं, इसीलिए आपको पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने बताया मास, लेंथ और टाइम, लेकिन साथ साथ में इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है ए से. Why? Because उसका यूनिट कितना है? एम्पियर, राइट? तो अगर मैं किसी क्वांटिटी को इन 7 बेस यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो इनकी जो ये पावर्स हैं, यानी कि x, y, z और सपोज p, q, r और s, लेट अस टेक देम एज a, राइट? फर्स्ट वन इज a. अब आगे लेते हैं, लेट्स से अदर वन एज, so we have L, we have M, T here, A here, let's say temperature है ना, तो हम टेम्परेचर को सपोज K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? उसी तरह से आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट. जनरली अमाउंट को ऐसे मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो आपको 5 बेसिक क्वांटिटीज काम आती है वो ये हैं: लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर. क्लास, आई विल रिपीट. आपको किसी भी क्वांटिटी को मास, लेंथ, टाइम, करंट दैट इज ए एंड के का मतलब टेम्परेचर, तो इन 5 क्वांटिटीज के टर्म्स में आपको किसी भी दूसरी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होता है, और इनकी ये जो पावर्स हैं, दीज पावर्स, दे आर कॉल्ड एज डायमेंशंस और इंडाइसेस. हमने याद है इंडाइसेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, राइट तेजस? 2-3 शायद प्रॉपर्टीज देखी थी, करेक्ट? Yes, sir. राइट. कौन कौन सी बताओ, याद दिलाओ सबको. First is if a to the power m, Yes. let's say, or x into a to the power n. So if the base is common, so it will be a to the power m plus n. Absolutely correct. Next वाला बोलो. Then yes, a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n. Absolutely correct. ठीक है. So ये two main है. Right. Plus there are many others जिसके बारे में अभी we are not concerned. Right. ठीक है. All right बच्चा. Thank you. So class, हम लोगों ने कुछ इस तरह से कुछ बेसिक चीजें देखी और समझा और इंट्रोड्यूस किया अपने सामने कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स किस तरह से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका यूसेज आने वाले चैप्टर्स में किस तरह से होने वाला है. तो अब आगे चल के आपको जो भी क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होंगी ना, जैसे 11th और 12th में आपके पास एक क्वांटिटी सामने आएगी, उसका नाम होगा चार्ज, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो उसको कहा जाएगा, चार्ज का मतलब होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम. तो अब मैं कहूंगा क्लास 12th में कि भाई बच्चा, करंट इनटू टाइम के लिए आप ना डायमेंशन लिख के दिखाओ. क्या कहूंगा? डायमेंशन लिख के
दिखाओ, तो आप क्या करोगे, करंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ए से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल टी से। तो आप कहोगे कि सर ये जो करंट, ये जो चार्ज है ना, ये करंट और टाइम के टर्म्स में ए और टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जो पावर है, ये ए का पावर कितना है 1 और टी का पावर कितना है 1। तो सर इस, मैं अगर इसका डायमेंशन लिखना चाहूं Q का, तो Q का डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू करंट इज 1, राइट, क्योंकि करंट के पावर में 1 आ रहा है और टाइम के पावर में भी 1 आ रहा है। मास, लेंथ और टेम्परेचर का क्या मैं पूछूंगा, तो बोलोगे सर इसमें तो मास आ ही नहीं रहा, तो मास का डायमेंशन 0, लेंथ भी नहीं आ रहा तो लेंथ का डायमेंशन भी 0, करंट आ रहा है और उसका पावर 1 है, टाइम आ रहा है और उसका पावर 1 है, सर टेम्परेचर भी नहीं आ रहा है तो k का पावर कितना ले लूंगा, 0। So this is how I have represented one quantity called charge in terms of other quantities, right? ये मुझे समझना है, ठीक है। तो अब जो मैंने आप लोगों को बुक रिकमेंड किए हैं, राइट, उन बुक्स में आपके पास ये सारे प्रॉपर्टीज दिए हैं, प्लस मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप पर ये जो एक document upload किया है, if you will see and open that document, you will find that there are different fundamental quantities and in fact different physical quantities, pardon me, there are different physical quantities, और हर physical quantity के लिए आपके पास उसमें अलग अलग डायमेंशन दिए हैं। जैसे आई विल राइट इट हियर टू अ फ्यू ऑफ देम, ताकि आपको याद आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। याद है आप लोगों को मैंने कहा था हर दिन 5 याद करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वी नो दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ का क्यूब, राइट। या अगर ये याद नहीं रहता तो याद करो कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, राइट, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ओके, सो नाउ लेट अस टेक एन्या। यस एन्या, बताओ वॉल्यूम के लिए अपन डायमेंशन कैसे लिखेंगे, m raised to the power 3, l रेज टू द पावर 3, राइट, क्योंकि देखो डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, l से, करेक्ट, क्लियर है ना एन्या। yes sir, ओके, तो लेट अस टेक नेक्स्ट पार्ट। या एन्या नेक्स्ट एक और बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। यस, डेंसिटी इज गिवन एज, यस बच्चा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट बच्चा। अच्छा एन्या बोलो, मास का यूनिट कितना होता है, एसआई यूनिट। हाँ एन्या बच्चा बोलो, मास का एसआई यूनिट इज केजीज, राइट। बच्चा आर यू देयर ऑन द इन द मीटिंग, एन्या। ओके, yes sir, actually it was some network issue, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ एन्या बच्चा, sir it will be m1 and l raised to the power -3, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्लास देखो, कभी अगर हम लोग भूल गए कि फॉर्मूला क्या है तो यूनिट याद करो, ठीक है। पावर में कितना है, ऊपर न्यूमरेटर में मास, नीचे कितना है, एल का क्यूब, राइट, लेंथ का क्यूब, तो क्या हो जाएगा m इंटू एल पावर -3, राइट। अच्छा नेक्स्ट चैतन्य वांटेड टू से समथिंग, सो लेट्स टेक चैतन्य। हाँ चैतन्य, सो चैतन्य आपको बताना है कि स्पीड के लिए डायमेंशन क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला बोलो बच्चा स्पीड के लिए। यस चैतन्य। It's length upon time. लेंथ अपॉन टाइम, या इसके लिए एक और बेहतर वर्ड है, Distance upon time. कितना डिस्टेंस Time. ट्रेवल किया गया उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितने टाइम निकाली जा रही है और उसके लिए कितना समय लगा, करेक्ट। लगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोलो एसआई यूनिट में, सर m upon s, राइट, मीटर पर सेकेंड। अच्छा उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, l to the power t minus 1, l to the power 1 और t to the power -1. ठीक है, ठीक है बच्चा, ओके, थैंक यू। ओके क्लास, तो अब देखो
हम लोगों ने अलग अलग तरह से लास्ट क्लास सर एक बात सर एक मिनट बच्चा, तो हम लोगों ने एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो एंड देन, है ना। सो क्लास हमने अलग अलग तरह से अलग अलग तरह के यूनिट देखे लास्ट क्लास में, और कैसे डायमेंशंस को आपको याद करना है। सो क्लास आपको याद आ रहा है, यू हैड बीन गिवन 37 क्वांटिटीज, राइट। आपको हर दिन इसमें से 5 क्वांटिटीज के लिए सिर्फ डायमेंशन याद करना है। एवरी डे 5 डायमेंशंस ईच डे, पर डे। तो विद इन आपके पास 7 डेज में आप लगभग 35 डायमेंशन याद कर लेंगे 37 में से, करेक्ट। और उस तरह से 2 और किसी भी दिन, तो यू विल हैव 37 डायमेंशन मेमोराइज्ड इन अ स्पैन ऑफ 7 डेज, ठीक है। तो अपना काम अगर बड़ा हो तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटो एंड देन इट बिकम्स इजी। आई होप एवरीवन हैज स्टार्टेड। एनी डे आई कैन टेक अ टेस्ट एंड आस्क यू टू गिव मी द डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर आज फर्स्ट डे है तो पहली 5 क्वांटिटीज, कल सेकेंड डे होगा तो मैं आपको कह सकता हूँ अगली 5 क्वांटिटीज में से आपको बताना है, राइट। तो अगर 37 है इस तरह से 1 2 3 एंड सो ऑन, तो 10th तक आई माइट टेक अ टेस्ट विद इन फर्स्ट 2 डेज। सो जब अगली क्लास होगी तब तक 2 दिन हो चुके होंगे, राइट। तो बाय अगली क्लास आई माइट आस्क एनीथिंग बिटवीन 6 to 7, जो 6 to 7 उस पेपर में दिए गए हैं, राइट। उसमें से आई कैन आस्क एनी क्वांटिटी का डायमेंशन, राइट। ऑल्सो इफ समबडी इज न्यू टू द क्लास, डू नॉट वरी, आपको वो शीट मिल जाएगी, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डायमेंशंस आर, करेक्ट, ठीक है। हाँ बच्चा, अब चैतन्य बोलो। सर मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन निकालने के लिए ट्राई कर रहा था सर, लेकिन वो नहीं निकला। आप एक बार ओके ठीक है, तो मुझे चैतन्य तुम ही बताओगे। यहाँ देखो क्लास, चैतन्य चाहता है कि हम लोग डिराइव करें कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए पहले अपन देखते हैं कि हमें कोई फॉर्मूला पता है क्या। चैतन्य बताओ, अलग अलग तरह की कौन कौन सी एनर्जीज होती है जिसका फॉर्मूला आप जानते हो, बताओ। सर लाइक मैकेनिकल एनर्जी का, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस और एनर्जी कौन, पोटेंशियल एनर्जी होता है सर, मैकेनिकल एनर्जी होता है, फिर उसके बाद और कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए, हीटिंग है ना, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बोलो क्या होता है। सर काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी, राइट, सिर्फ उसी को जवाब देना है, राइट। सो नोबडी विल बी स्पीकिंग ऑन द बैकग्राउंड, राइट। यस, सो यस, हाँ चैतन्य बच्चा बोलो। सबको क्योंकि मौका मिल रहा है, राइट, तो ऑल हैव टू स्पीक व्हेन दे आर गिवन द टाइम टू डू सो। यस चैतन्य बच्चा बोलो। सो आई हैव अनम्यूटेड यू चैतन्य, राइट। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाओगे। सर, इट्स हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ऑन रखना, ठीक है माइक। नाउ हाफ एम वी यस सर। स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम का फॉर्मूला। सर वॉल्यूम का यूनिट बोलो अगर यूनिट याद है तो। एल क्यूब लिख सकते हैं फॉर्मूला, वॉल्यूम का। अगर कोई, यस सर, कोई वॉल्यूम का। अगर सर वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। सुनो सुनो, हाँ या तो लिख सकते हो L इंटू बी इंटू एच, या फिर अभी अपन ले लेते हैं अगर एक क्यूब के लिए वॉल्यूम, तो क्यूब के लिए वॉल्यूम कैसी होती है, एल क्यूब, राइट। तो यहाँ से हमारे यस सर। किसी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और किसी भी एक खास तरह की वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। अब यूनिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाफ का कोई यूनिट होता है क्या चैतन्य। नो सर, नो सर। मास का यूनिट होता है, यस सर। ठीक है, क्या होता है, केजी। यस सर। वेलोसिटी का यूनिट बोलो। सर वेलोसिटी का होता है, पर सेकंड। सर निकाल। यस सर, मीटर पर सेकंड। लेंथ के लिए यूनिट क्या होता है बच्चा, मीटर, सर लेंथ के लिए मीटर्स। है ना, उसका क्यूब कर दो। यस सर। अब क्या करेंगे, यस सर। अब हम लोग ये करेंगे कि इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो केजी मीटर स्क्वायर होल बाय सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना। और नीचे कैसा आ रहा है, यस सर। क्लियर हो रहा है बच्चा ये। यस सर। अब क्या करोगे, एम और एम, देखो ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, तो ये अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, याद है क्लास में हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पर
अगर एक ही इंडेक्स है और पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट। हाँ या ना बच्चा, सब्ट्रैक्ट। है ना। यस सर। तो अब यहाँ पे देखो m नीचे भी है और ऊपर न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में भी है। सब्ट्रैक्ट करो बच्चा, कितना आ जाएगा, यस सर। 1 3। सर -1। राइट, और नीचे यस सर -1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। m पावर -1 होल बाय सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक बच्चा? यस सर। ठीक। यस सर। अब इनको डायमेंशंस में कन्वर्ट कर दो, रिस्पेक्टिव डायमेंशंस में। केजी किसका डायमेंशन है, m, राइट। और ये यस सर। मीटर किसके लिए यूनिट है, लेंथ के लिए, मतलब l लेंथ के लिए। पावर यस सर। आया ना। ये सेकंड्स किसके लिए था, यस सर। टाइम के लिए, तो नीचे कैसा आ जाएगा, टाइम। t स्क्वायर, राइट। यस सर। अब इसको यस कैसे सर। लिखते हो, m l पावर -1, t ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, -2। हाँ या ना, -2। क्लियर हो गया यस सर। उसका। यस सर। कि मुझे यस सर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकलेगा, अब कर लोगे, यस सर। ठीक है, चलो ठीक है बच्चा। अच्छा, अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट कुशल। सो कुशल, I'll be giving you the mic option, just a minute. ठीक है, सो आई हैव अनम्यूटेड यू। कुशल, मैंने क्वांटिटी डिफाइन किया है, ठीक है, क्वांटिटी का नाम दिया है सपोज x, अभी नहीं पता क्या कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। उसके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिया गया है, देखो L√L/G, ठीक है। अब आपको डिराइव करना है कि कैसे इसके लिए, मतलब कुशल अभी जवाब मत देना, I'll do one thing, I'll mute everyone। अभी जवाब मत देना, निकालो, हर कोई इस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेगा, ठीक है, x का डायमेंशन निकालेगा हर कोई। मैंने क्वांटिटी डिफाइन किया है √L/G, आप सब लोगों को डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। तो आई एम गिविंग यू सम यहाँ पर अभी क्लास वर्क जिसको आपको करना है इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, राइट। आई एम गिविंग सम क्वांटिटीज वन बाय वन, ठीक है। सब लोगों को ये कैलकुलेट करने हैं डायमेंशंस ऑफ दीज क्वांटिटीज इन द 10 मिनट्स। ऑल्सो इफ समबडी इज न्यू टू द क्लास, प्लीज डू नॉट वरी, ठीक है, चिंता मत करो, आप धीरे 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 जो चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं आने वाली क्लासेस में वो सीख जाओगे, ठीक है। ओके, क्वांटिटी B इज डिफाइंड एज एनर्जी, तो आपको एनर्जी के लिए बताना है क्या यूनिट है, राइट। क्वांटिटी C इज डिफाइंड एज, इनके लिए सबको आपको डायमेंशंस निकालना है, चाहो तो आप बीच में यूनिट निकाल लो फिर डायमेंशंस बताओ। यू हैव टू फाइंड आउट डायमेंशंस फॉर दीज क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम पर यूनिट मास, राइट। अगली क्वांटिटी, फिफ्थ वन is D. This quantity is energy into velocity. ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिसके लिए आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया जा रहा है, आपको उसके लिए डायमेंशंस निकालने हैं, ठीक है। राइट, then next one is quantity number E. It is given as acceleration per unit velocity, ठीक है। फिर अगली क्वांटिटी इज F, given as power per unit mass whole to the power 1/3. Seventh is G, given as energy per unit length, given as to the power 1/6. Then एक और आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है, एक और क्वांटिटी है H, given as time per unit energy into volume
अपॉन मास होल टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, अब आपको इन क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस बताने हैं। ठीक है, क्या क्या डायमेंशंस होंगे। तो we'll start from Kushal, but then we can come to anybody, right? तो सब लोग तैयार रहेंगे with the answers. You have 5 to 7 minutes from now. Minimum 5 minutes, maximum 7 minutes. जैसे ही हो जाए तो you'll raise your hand, right? So it is 1:35 now, right? It is 1:35 now. So we will take time till 1:41 minutes, right? Somewhere between 5 to 6 minutes of time. Yes, your time starts now. Get going and find out the dimensions. Yes, class. याद रखना मैंने कैसे ऊपर अभी कन्वर्ट किया है, इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। और अटकना मत एक क्वेश्चन पे, और घबराना भी मत कि अरे ये क्या हो रहा है, मुझसे नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, बन गया अच्छी बात है, नहीं बन गया और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप सीख जाओगे। ठीक है, यस, गेट गोइंग। थैंक यू क्लास। 5 minutes अंटिल देन बनाना है, राइट? अपने आप के साथ कंपटीशन करनी है, किसी और के साथ नहीं। as soon as you have as soon as you have finished exploring or finding out the dimensions, raise your hand, right? Raise your hand after all 7 are done. Yes, get going.
Okay, so I can see two of you have raised hands. One is Kartikeya, next is Tejas, third one Amish is also done, Veeraj is also done. Okay, uh, okay, all right, all right. अच्छा मुझे क्लास एक बात बताओ, पहले यहाँ पर यहाँ देखना सभी लोग, on the right you have these four. ये चार जिन जिन के हो गए हैं, please raise your hand. I'll repeat which four, these four on the LHS. Yes, class. So we'll take those answers first. Yes, please raise your hands if you have completed these four. Yes, bachalo. Also, yeah. Also, Disha, please don't worry because you're new to the class. You might not be knowing everything, right, about what we had read in the last class. So you'll be able to cover up slowly. Don't worry. है ना, हम इसके बारे में discuss करेंगे. So after the class, you can call me up and we'll discuss how are you going to cover these remaining portions, right? ठीक है. All right. So I can see that some of you have raised hands. जिन जिन लोगों ने पहले ये चार कर लिए हैं, please raise your hands. Yes. ठीक है. So I can see most of you are done. ठीक है. अच्छा क्लास अगर नहीं भी हुआ ना तो घबराना मत, स्क्रीन पर देखना और सीखना, है ना, अपने आप को कम नहीं आंकना है, अगर नहीं हुआ है तो अच्छी बात नहीं हुआ है ऐसा सोचो. ठीक है. So we'll start with Kushal. तो all right Kushal, I've unmuted you. Go ahead, tell me. हाँ, अब अप्रोच बताना. Yes Kushal. It is given length upon acceleration due to gravity. ठीक है. So we will put the dimension of them. ठीक That है. is length का L आएगा और acceleration due to gravity का L t square L minus 2 Min- minus 2. और सपोज अगर मैं डायमेंशन से करना, अगर ये यूनिट के थ्रू डायमेंशन निकालना चाहूँ तो ऊपर कैसा आएगा, मीटर, राइट? Yes sir. And नीचे m s minus 2. हाँ, जिसको अपन कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? Square. ठीक है. Yes sir. हाँ, और उसके पावर में क्या आएगा? L 0 t यहाँ पर positive 2. होल टू द पावर ऑफ, ये रूट लगा हुआ है ना, रूट का मतलब Half. पावर Half. हाफ. एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा अब बोलो नेक्स्ट, अंदर क्या कैलकुलेशन करोगे? हाँ बोलो. L will become 0. 1 minus 1 ऐसा कुछ, Yes sir. राइट? और t के लिए क्या करोगे? Positive 2. क्यों हुआ ये पॉजिटिव 2 क्यों हो गया, ये बताओ क्लास को. क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है और अगर अपन इंडाइसिस का फॉर्मूला लगाएंगे हाँ, तो हाँ. ऊपर जाके वो -2 हो जाएगी उसकी Right. पावर. देखो तो अब बेसिकली अगर मेरे पास 1, कुशल ये कह रहा है कि भाई सुनो 1 अपॉन a पावर x अगर कोई क्वांटिटी है तो आप उसको आगे लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर ऑफ -x. मतलब जो भी क्वांटिटी हो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. वेरी सिंपल रूल, हम क्लास 9 10th में पढ़ चुके हैं. तो बस हमने वही किया, यहाँ पर 1/t टू द पावर -2 था, जब ये न्यूमरेटर में गया तो माइनस ऑफ -2 हो गया, which is nothing but t का स्क्वायर, राइट? कुछ ऐसे ही कुशल, राइट? सो ओके. हाँ कुशल, कंटिन्यू अहेड. आई हैव अनम्यूटेड यू बच्चा. यस. यस सर. और फिर हाफ है पावर तो 2 into हाफ हो जाएगा 1. 2 into हाफ हो जाएगा 1. तो फाइनल डायमेंशन कितना आया x के लिए बच्चा, बोलो? t raised to the power 1. t raised to the power 1. और m, और अगर मैं सपोज मैं बोलता हूँ नहीं तुमको m और l के रिस्पेक्ट में भी बताना पड़ेगा, तब क्या बोलोगे? m raised to the power 0, l raised to हाँ. the power 0 and t power 1. t power 1. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन. सो क्लास जिन्होंने हैंड रेज ये पहले 3 कर लिए हैं, अपने हैंड रेज रखो सभी लोग, सो दैट आई विल सिलेक्ट द नेक्स्ट स्टूडेंट. ठीक है. तेजस, अमीश, ओके, वहिवेश, ओके. we have Kartikeya, Veera, Chaitanya, Rahul, Shrish. Okay, all are, many of you are done. ठीक है, कोई बात नहीं. But now let Anya try this. ठीक है. So I think Anya, हाँ Anya बच्चा try करो. Yes. एनर्जी के लिए फॉर्मूला बोलो. अभी अभी हमने यहाँ ऊपर देखा है बच्चा, देखो Anya on the top, right?
फॉर्मूला बोलो काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चा. यस. ml इनवर्स. देखो बच्चा ध्यान से, एक मिनट. यहाँ पर ml इनवर्स कब आया था? जब हमने ये जो टाइम वाला पोर्शन था उसको कैंसिल कर दिया था. उसको मत देखो, आरएचएस में मत देखो, एलएचएस में देखो. यहाँ देखो, हाफ mv स्क्वायर, हाँ या ना? राइट. तो एन्या मुझे बताओ, केजी के लिए, केजी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डायमेंशन की टर्म्स में? m. राइट. एन्या आई एम अनम्यूटिंग यू, आप म्यूट मत करना, आप बस बोलते जाओ. हाँ बच्चा. तो यहाँ पर अपन पहले सबसे पहले ना आप एनर्जी का कोई भी एक फॉर्मूला बोलो. जैसे अपन ने अभी कैसे किया था, हाफ mv स्क्वायर से किया था. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो बच्चा? एन्या, mgh. Yes, sir. राइट. ठीक है. तो अब mgh के लिए अपन निकाल के देखते हैं, वही डायमेंशन आते हैं क्या जो हाफ mv स्क्वायर के लिए आए थे? ठीक है. हाँ. m के लिए बोलो क्या हो जाएगा डायमेंशन? m, कैपिटल M. राइट. अच्छा, g के लिए कितना Yes, हो sir. जाएगा? g तो एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन के लिए देखो, अभी अभी हमने ऊपर किया था, बोलो कितना हो जाएगा? L t to the power minus 2. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो mgh में m और g हो गया. h क्या होती है? हाइट. तो हाइट के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा. डिस्टेंस को अपन कैसे लिख सकते हैं? लेंथ के टर्म्स में. तो क्या हो L. जाएगा डायमेंशन? L. l. तो अब इसको टोटल बोलो क्या हो गया? m इंटू l पावर L2 2 t t to the power minus 2. 2. तो इसको क्लास ऐसा बोला जाता है जनरली, m l2 t minus 2. राइट. और m l raised to 2 t minus 2, इसको कहा जाता है इस तरह से. राइट. तो अब बोलो एन्या, एनर्जी के लिए डायमेंशन क्या होते हैं? बोलो. m l raised to the power 2 t minus 2. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. अब ना आप लोगों को ऐसे जो बेसिक क्वांटिटीज है ना, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो कई जगह काम आती है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड, अगर मैं राइट टर्म्स में करूं तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्वांटिटीज के लिए आपको क्या पता होने चाहिए? डायमेंशंस. जैसे एनर्जी. राइट. अच्छा, ये जो डायमेंशन आया वो टाइम के इक्वल आया है. राइट. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट लेते हैं. थैंक यू एन्या. राइट. ओके. Now let us take next one as ठीक है, वीरज को लेते हैं. Yes वीरज, I have unmuted you बच्चा. Go ahead and speak कि C क्वांटिटी के लिए डायमेंशन कैसे निकालेंगे. Yes बच्चा बोलो. सर वॉल्यूम को लिख सकते हैं L to the power 3. L to the power 3, very good. और मास को लिख सकते हैं M to the power 1. ठीक है, आगे क्या करोगे? सर तो it will be L to the power 3 times M to the power minus 1. Yes, absolutely correct. और T के पावर में क्या लिखोगे? Okay, I think you got muted. So unmuting you again बच्चा. हाँ बोलो, ट्राई करो. सर T to the power 0. 0. राइट. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अब मुझे बताओ वीरज कि मैं क्या कह सकता हूँ अगर मैं सपोज क्वेश्चन में ही पूछता हूँ आपसे. क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो क्वेश्चन में देता है you have C is given as volume per unit mass. ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है. ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट मास. राइट. सपोज डायमेंशन विथ respect to mass is, इसको और भी अच्छे से लिखें, with respect to mass is x, right, and with respect to WRT. ठीक है, with respect to time is y and dimension with respect to length is z. आपको बताना है what is the value of x plus 2y plus 3z. yes, कैसे करोगे वीरज? सब पहले डायमेंशनल फॉर्मूला से अपन x, y और z की क्वांटिटीज निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे. निकालो, बताओ अभी अभी क्या आया था c के लिए. यहाँ से डायमेंशन देख के बोलो. तो मास का डायमेंशन था -1,
x की वैल्यू -1। पहले लिख लेते हैं, डायमेंशन बोलो क्लास, सभी लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे, एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, खासकर स्टेट के एग्जाम्स में। जैसे अगर आप सीजीपीटी देते हैं या फिर आप महाराष्ट्र का कोई एमएचसीईटी देते हैं, ठीक है, तो इन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार अपीयर होते हैं। हाँ बच्चा, या फिर नीट के पेपर में भी अपीयर होते हैं, राइट। यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस अपीयरिंग इन नीट और द स्टेट एग्जामिनेशंस लाइक सीजीपीटी या फिर MHCT, right? So these are such probable questions. हाँ बच्चा, continue. सर m to the power -1, M to the power -1, आगे बोलो। l cube L cube, ठीक है, इसको ले and लेते 2 to हैं। the power t to the power 0। L cube t to the power 0, ठीक है। अब इनका इंटरप्रिटेशन कंपेयर करो, क्वेश्चन में जो दिया है उसको x y z के टर्म्स में बोलो। m रेज टू पावर कितना हो जाएगा? x। l रेज टू पावर कितना हो जाएगा? z z। और t रेज टू पावर 0 y। y, ठीक है। अब यहां से हम क्या, हम बताओ सबको, मुझे नहीं, सबको एक्सप्लेन करो कि अब तुम यहाँ पर x y z की कैसे वैल्यू निकालोगे। हाँ बच्चा बोलो। सर क्योंकि दोनों फॉर्मूला सेम ही है तो अपन को मालूम पड़ रहा है कि जो m l t की डायमेंशंस है वो सेम x z और y के है। ठीक है, आगे बोलो फिर। सर x की वैल्यू आती है -1, ठीक है, z की वैल्यू आती है 3 ठीक है, और सर t की वैल्यू आती है 0। y की वैल्यू, राइट। हाँ y की वैल्यू। हाँ, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसा यस सर। करो, सब्स्टिट्यूट करो, बताओ क्या आता है सबको आंसर। सर 2 ओ सर 3z, ओके सर। तो 9 -1 8। इजी था वीरज, यस सर। है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाते हैं ताकि बच्चा बहुत अच्छे से आराम से स्कोर कर सके, ठीक है। ऑल राइट, सो राइट वीरज, यू कैन म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। नाउ क्लास, तो ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं, है ना, ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये आपके असाइनमेंट्स हैं। सो वी आर स्टार्टिंग, लेट्स से फ्रॉम ओवर हियर, आई एम मार्किंग देम अ स्टार, ठीक है। ये सब आपके असाइनमेंट्स हैं जो आपको फिनिश करने हैं आज शाम को 7 बजे से पहले, और मुझे एक शीट में कि आपने कैसे सॉल्व किया सेंड करना है, या मैक्सिमम आप टाइम ले लीजिए 7:38, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और आपको गूगल क्लासरूम पे ये अपलोड करने हैं, एक या 2 या 3 पेज ले लो, ठीक है, उन सब पे ये सॉल्व करो, राइट। और जिसपे स्टार मार्क किया हुआ है, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। प्लस साथ साथ में, राइट, अगर समय बचता है, so you'll also go for these quantities, energy per unit volume, x, b and c, ठीक है। क्लियर है सबको? ये होमवर्क है, इसको आज शाम को बनाओ, राइट, सेंड करो मुझे बाय असाइनमेंट इन द क्लासरूम एंड वील डिस्कस द सॉल्यूशंस इन द कमिंग क्लास, ठीक है। ऑलराइट, सो क्लास, मूविंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं, and that aspect is the working of screw gauge and vernier caliper. सब लोग hands down कर सकते हैं, thank you everyone, right. So working of vernier calipers. Vernier calipers. So class, now let us understand the concept of vernier scale least count. Least count of the vernier scale is given as 1 MSD minus 1 VSD. In the question we have been given the data that 10 divisions of vernier scale coincide with 9 divisions of main scale, है ना।
अब इस डेटा का कैसे यूज करना है, देखो जब डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा VSD। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, मतलब मेन स्केल डिवीजन, और ये है वर्नियर स्केल डिवीजन, लिख लो अपने पास, ठीक है। MSD इज मेन स्केल डिवीजन, VSD इज वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें पता है क्वेश्चन में दिया गया है दूसरी बात कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात क्या पूछी जा रही है क्वेश्चन में, या हमें निकालनी है, इज 1 VSD इज इक्वल टू हाउ मेनी MSDs, 1 VSD इज इक्वल टू हाउ मेनी MSDs। कैसे निकालोगे, आप लोग एक बात जानते हो, क्या बात जानते हो, कि अगर मुझे 10 चॉकलेट का दाम पता है 9 रुपए है, राइट, तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, सिंपल, क्या करोगे, 1 into 9 whole by 10 which gives me 9 by 10, राइट। कुछ कुछ वैसा ही, इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट, छोटी सी चीज है, कुछ कुछ वैसे ही यहां भी लगेगा। अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन में 9 मेन स्केल डिवीजन आते हैं तो एक वर्नियर स्केल डिविजन में कितने MSD आएंगे, वेरी सिंपल, 1 into 9 whole by 10, that is equal to 9 by 10 MSD, ठीक। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, क्या करेंगे, देखो 1 MSD माइनस 1 VSD, VSD की क्या वैल्यू है, 9 by 10 MSD, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो यहां पर हमारे लिए सब्ट्रैक्शन बड़ा आसान हो गया, 1 minus 9 by 10 करो और MSD ऑफ कोर्स कैसा ले लो, कॉमन। अच्छा, 1 minus 9 by 10 an obvious note will give you 1 by 10 MSD, that is main scale divisions। क्या आ रहा है, ये क्या निकाल रहे हैं, लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर्स का, इस डिवाइस का जिसको अभी हमने देखा, वर्नियर कैलिपर्स का, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, लीस्ट काउंट। तो अब 1 by 10 ऑफ अ मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, दूसरी चीज, MSD की वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में, देखो MSD दिया है क्या, अरे हाँ MSD तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 mm, सिंपल, तो MSD की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो 1 mm, आंसर कितना आ जाएगा, 1 by 10th ऑफ 1 mm which is 0.1 mm या मिलीमीटर। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि एक वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना आ गया है, 0.1 mm। आप पूछ सकते हो कि सर क्या ये हमेशा ऐसे ही होगा, तो मैं कहूंगा नहीं, जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पेक्टिव MSD एंड VSD, राइट। तो अब आई वुड वांट एवरीवन टू लेट मी नो कि क्या ये लीस्ट काउंट निकालने का तरीका समझ में आया, बट अभी नहीं, इसके बाद एक सम दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो, अगर बन जाता है तो आई ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि आपको क्लियर हुआ है, ठीक। तो हैव अ लुक, हियर इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि आप एक स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, घबराना मत, नाम देखकर, क्वेश्चन में दिया है स्पेक्ट्रोमीटर एंगल को मेजर करने के लिए यूज होता है, किसको मेजर करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए। तो एंगल मेजरिंग के पर्पस से यूज होने वाला एक डिवाइस है स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, उसमें एक मेन स्केल है और उसमें एक वर्नियर स्केल है, राइट। क्वेश्चन में लिखता है कि 30 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के 30 डिविजन्स कोइंसाइड करते हैं 29 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल से। क्या कहा मैंने, 30 divisions of the vernier scale coincide with 29 divisions of the main scale, and it is also given that one main scale division is, or the smallest measurement, I'll repeat, the smallest measurement, I'll give you the exact question, देखो
smallest measurement made by main scale is half degrees. Half matlab 0.5 degrees. Now find out the least count of vernier scale or vernier calipers. वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड कीजिए, राइट? वही फंडा, सेम फंडा जो भी हमने यहां पढ़ा, बस वही कहां लगाना है, इस जगह, राइट? घबराना नहीं है, शांत मन से क्वेश्चन को देखो, बन जाए अच्छी बात है, नहीं बन जाए आई विल बी टेलिंग, ठीक है? गेट गोइंग क्लास, यस yes class, go ahead. So this is your question from AIEEE 2009. So हम लोग क्लास में ना ऐसे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस बनाते रहेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में. यस क्लास, गेट गोइंग. सिंपल, इजी और आप लोगों के बिल्कुल बनाने लायक. यस क्लास, गेट गोइंग. देखो अब let me see if you have been able to solve it. Okay, so class, now I would want you all to raise hands if you have been able to solve this question. Yes, get going and raise your hand if you have been able to solve this question. Yes, get going. Same pattern, same format. So I can see some of you have solved it, some are still making. Shrish has solved it, Rahul has solved it, Veeraj ने बना लिया, महिवेश ने बना लिया, चैतन्य ने बना लिया, कार्तिकेय ने बना लिया. कोई और है? Anyone? Okay, अमीश ने भी बना लिया. Okay, एन्या ने भी बना लिया, कुशल ने भी बना लिया. ठीक है, बाकी लोग ट्राई कीजिए. Okay, so now let's take this answer from Disha. Okay, Disha, I've unmuted you. Try telling. कोशिश करो, I'll help you out. बाकी लोग हैंड रेज रखेंगे. हाँ दिशा बच्चा, ट्राई करो. कैसे निकालेंगे फॉर्मूला बोलो? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, हाँ बोलो, 1 MSD minus 1 VSD. 1 MSD minus 1 VSD. एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, एक्सीलेंट बच्चा. आगे बोलो. हाँ, कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में जिससे VSD निकाल सकते हैं? हाँ बोलो. 30 VSD is equals to 29 MSD. 30 VSD is equal to 29 MSD. Very good. आगे बोलो. 1 VSD is equals to question mark. 1 VSD is equal to, कैसे निकालोगे बोलो? Unitary method से 1 VSD is equals to 29 upon 30 MSD. 29 upon 30 MSD. Absolutely correct बच्चा. ठीक है, अब इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? इन द फॉर्मूला, राइट? हाँ करो, बोलो कितना हो जाएगा? 1 MSD minus 29 by 30 MSD. 29 by 30 MSD. Absolutely correct. Next one will be, अगला स्टेप क्या होगा? MSD common. MSD कॉमन ले लो. 1 minus 29 by 30. हाँ आगे बोलो. MSD. MSD. Absolutely correct. कितना हो जाएगा? 1 minus 29 by 30 कितना होता है? 1 by 30. 1 by 30. Very good. 1 by 30 MSD. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन में MSD दिया है क्या? वैल्यू दी है क्या? हाँ बोलो क्या दिए? 1 MSD is equal to 0.5 degree. 0.5 डिग्री. वेरी गुड. तो क्या हो जाएगा? 1 by 30
into 0.5 degrees, right? ऐसे ही कुछ होना चाहिए. Very good बच्चा, very good. All right, thank you Disha. Okay, right. So now let us take, तो क्लास सभी का यही आंसर आया होगा, आई एम होपिंग. श्रीश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप डिग्री और मिनट्स का कन्वर्जन जानते हो क्या? आई एम अनम्यूटिंग यू, बोलना. हाँ बच्चा बोलो. यस सर. डिग्री और मिनट्स का कन्वर्जन जानते हो क्या? अगर मुझे कोई चीज डिग्री में दी जाए और उसको कहा जाए मिनट्स में कन्वर्ट करो, तो ऐसा कहीं सीखा है क्या पहले क्लास में? यस सर. क्या सीखा है बताओ, याद कराओ सबको और रिवाइज कराओ. हाँ बोलो. Sir, I know that 1 degree is equals to 60 minutes. और मिनट, Sir, it's actually 8 minutes. हाँ क्या बोलो बोलो, 60 मिनट्स है ना? Sir, 1 degree equal to 60 minutes. वेरी गुड. And to express minutes, we use a slash over there. राइट, एक सिंगल अपॉस्ट्रोफी या स्लैश यूज करते हैं. ठीक है, Apostrophe. राइट. अच्छा अब And 1 बताओ. minute equals to 60 arc seconds. यस, हमने ये भी पढ़ा है कि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स, या उसको आप डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो. वेरी गुड बच्चा. एक और चीज बताओ कि क्या अब जो आपका आंसर आया है ना, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है मिनट में. मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इन ऑप्शंस में से एक को चुनना है उसके बाद. रेडी? Yes, sir. ठीक है, मैं ऑप्शंस दे रहा हूं. ठीक है, तब तक कन्वर्ट करना शुरू करो. बाकी लोग भी करेंगे, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं. ठीक है, आई एम म्यूटिंग यू, राइट? ट्राई करो. ऑप्शंस हैं 1 मिनट, लीस्ट काउंट की वैल्यू बतानी है. ठीक है, 1 मिनट, हाफ मिनट, राइट, 1 डिग्री, या फिर हाफ डिग्री. यस, सो लेट अस टेक नाउ वीरज, श्रीश हो गए, कार्तिकेय, चैतन्य, एन्या, अमीश. लेट अस नाउ टेक कार्तिकेय. ठीक है, हाँ कार्तिकेय, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बच्चा? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए कैसे आया बताओ? सर बिकॉज 1/30 into 0.5 into 60. तो हमने Will give. बताओ सबको कैसे निकाला ये, अच्छे सर से बताओ. सर 0.5 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू मल्टीप्लाई बाय 60. एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ऐसा क्लास कि 1 डिग्री में आते हैं 60 मिनट्स. अभी मुझे कन्वर्ट करना है 0.5/30 डिग्रीज को मिनट्स में, है ना? तो अब ये हो जाएगा 60 into 0.5/30, राइट, विच गिव्स मी 0.5 into 2, दैट इज 1 मिनट, राइट? तो इसीलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1 मिनट. हाँ या ना? राइट. अच्छा, अब इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं IIT JEE के क्वेश्चन में. कैसे कन्वर्ट कर देते हैं? अब मैं ना आपको ये अच्छा, इसमें तो आपने बोल दिया जवाब. ठीक है, अब मुझे बताना. अब आपके पास जवाब आया 1 मिनट. अब IIT JEE में आपके पास क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मोर देन 1 करेक्ट होते हैं. कैसे होते हैं? मोर देन 1 करेक्ट. तो अब सपोज अब आपको ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं. नाउ यू आर ऑन एन IIT JEE पेपर. ठीक है, आप पेपर दे रहे हो, सामने ऑप्शन दिए हैं. देखो, पहला दिया हुआ है 1 मिनट, राइट, फिर दिया हुआ है 60 मिनट्स, फिर दिया हुआ है 60 सेकेंड्स, फिर दिया हुआ है 60 डिग्रीज. ठीक है, अब आपको सिलेक्ट करना है. तो नाउ लेट अस टेक कुशल. यस कुशल, ट्राई इट आउट. So option A and C will be correct. ऑप्शन ए एंड सी कैसे होंगे और क्यों होंगे, बोलो. So क्योंकि हमने पहले सॉल्व किया तो 1 मिनट आया, और 1 मिनट को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड्स होगा. राइट, हमने देखा कि हमारा जो आंसर आया यहाँ पर, ये आंसर आया 1 मिनट, है ना? हमने 1 मिनट यानी कि पॉइंट यहाँ पर देखा 30/0.5 डिग्रीज इज नथिंग बट 1 मिनट. और 1 मिनट को हम कन्वर्ट करके ला सकते हैं कितना? सेकेंड्स. 1 मिनट इज नथिंग बट अभी अभी हमने देखा 60 सेकेंड. तो कई बार क्या होता है,
जेई एडवांस या फिर अभी जिसको हम जेई एडवांस कहते हैं, पहले जो आईआईटी जेई कहलाता था, उसमें आपके पास यू हैव सच क्वेश्चन जिसमें मोर देन वन करेक्ट होते हैं, है ना, मोर देन वन करेक्ट होते हैं। तो वहां पर आपको क्या किया जाता है, कई बार एक ही जवाब को अलग अलग यूनिट्स में दे दिया जाता है, जैसा हमने यहाँ किया, राइट। यहाँ पर 1 मिनट में भी दिया है और सेकंड में भी आंसर दिया है, तो ऐसे केस में फिर आपको दोनों टिक करने होते हैं, राइट। सो ऑल राइट, ठीक है, ग्रेट कुशल। सो इस तरह से क्लास हम लोगों ने क्या सीखा आज हमने, आई विल रिवाइज इन अ क्विक बिट हमने जो भी सीखा, है ना। सबसे पहले हमने एक रिवीजन किया, राइट, जिसमें हमको तेजस ने बताया कि सर हमने सबसे बड़ा सबक सीखा पिछली क्लास में कि हमको कभी भी यूनिट्स में गड़बड़ियां नहीं करनी है। जिसको सब कुछ आता है और वो यूनिट में गड़बड़ियां कर दे तो अपने मार्क्स अपने हाथ से देकर दान देकर आ रहा है ना। तो अब हमें अपने मार्क्स एग्जामिनर को दान में नहीं देने हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, बहुत ही संभल की कैलकुलेशंस करनी है। फिर हमने देखा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। क्लास एवरीवन कैन ब्रिंग देयर हैंड्स डाउन, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का हैंड्स अप करना मुझे दिखाता है कि आप लोग क्लास में कितना एनर्जेटिकली और एंथुजियास्टिकली एंगेज हो रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। ऑलराइट, तो हमने अगला चीज देखा अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ बेस यूनिट्स, राइट, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट। ये जो दो क्वांटिटीज हैं ज्यादा यूज में नहीं आती हैं, इसीलिए मैंने पहली 5 को ज्यादा फोकस किया है। देन हमने देखा अलग अलग क्वांटिटीज में अगर आपको डायमेंशन निकालना हो तो हाउ डू यू फाइंड इट आउट, राइट। फिर हमने अगला एस्पेक्ट देखा दूसरी चीजों का, जैसे एनर्जी, मास, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों के लिए डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, वेरी सिंपल, राइट। उसके बाद हमने आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिया है अगली क्लास के लिए, या इन होमवर्क को आपको आज शाम में 7 से 7:30 के बीच में सॉल्व करना है एक पेपर में। उसका स्कैन लेना है, आप लोगों को ऐप का नाम और क्लासरूम लिंक ऑलरेडी पता है, राइट। तो उसको स्कैन लिखो, स्कैन करो और गूगल क्लासरूम में आज अपलोड कर दो, ठीक है। और कल मुझसे आप लोग आंसर शेयर करेंगे इन द क्लास। देन हम लोग ने अगला देखा पार्ट कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके एग्जाम में दिया जाता है ना। तो हमने नीट और जेई लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखे, वर्नियर कैलिपर्स की वर्किंग समझी पहले, फिर वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालना देखा। अब उसके ऊपर फिर हमने देखा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। और मैंने देखा कि आप लोग ने बहुत अच्छे से समझा भी और पार्टिसिपेट भी किया। इन द कमिंग क्लास, जैसे मैंने आज आप लोगों को सिलेबस बताया था, राइट, so because we have completed the least count of vernier calipers की रीडिंग कैसे ली जाती है, स्क्रू गेज की के लिए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके लिए रीडिंग कैसे ली जाती है, राइट, एरर्स का क्या फंडा होता है। आई होप ये आप लोगों ने एरर्स वगैरह अपने एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर दिया है, जैसा मैंने आपको बताया था, राइट। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हो तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, राइट। तो एरर्स क्या होते हैं, किस किस तरह के एरर्स होते हैं, राइट, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो इसका बहुत कुछ आइडिया आपको आपके एनसीईआरटी से उस तरह से नोट्स बनाने से मिल गया होगा जो मैंने आपको सिखाए थे, राइट। डायमेंशंस तो हमने देख लिया, लेकिन डायमेंशंस का कुछ खास यूज होता है, डायमेंशंस के एप्लीकेशन पर बेस्ड हम कई क्वेश्चंस देखने वाले हैं अगली क्लास में, ठीक है। सो दिस विल बी आवर वर्किंग फॉर द नेक्स्ट क्लासेस, है ना। आने वाली क्लासेस का ये सिलेबस है। हम इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई करते जाएंगे। सो everyone, thank you for being a part of the class. Thank you very much, right. Let us meet in the next class and discuss ahead.